And shift our focus to some breaking developments coming in from Assam. In the Hailakandi case involving the alleged rape and murder of a 15-year-old girl, Assam police has detained 5 people so far. Additional Superintendent of Police Sameer Daptar Barua has said that one of the detained individuals is reportedly a minor. Police are continuing their investigation into the case while locals have been protesting and demanding justice for the victim. Nibir Deka joins us on the broadcast to share more on this. Nibir, walk us through the details that we're tracking as far as this case is concerned. We now have an understanding that 5 people have been detained. That includes one minor as well. This is indeed a big incident which has happened in Assam today, wherein 5 people have been detained for the incident which has caused a big uproar in Hailakandi, wherein a murder of a 15-year-old girl and an alleged rape has happened, and the additional Superintendent of Police have also confirmed that they have been detained, and the investigation is going on. One of them is also reportedly a minor in this connection with the alleged rape and murder, and the Assam police has picked up the investigation, and more details will be available as and when the investigation process. All right, Nibir, thank you so much for sharing all those details with us. We're going to leave it there and shift our focus to some more breaking updates. The investigation into the alleged Pakistan-linked terror module has taken a major turn, with West Bengal STF claiming that the accused Arpita Sarkar played a key role in the conspiracy. IG STF Gaurav Sharma has said that the probe has revealed an alleged plot to honey trap and kidnap the son of a senior minister. Investigators are now claiming that the accused were in contact with Pakistan-based handlers through multiple social media platforms and were tasked with recruitment, intelligence gathering and arrangements of uniforms. Listen in. इन्वॉल्वमेंट इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि जो एक हमने मैटर बताया जिसमें एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे को जब हनी ट्रैप और किडनैप करने की बात हो रही थी, तो उसमें हमीम मंडल ने इंगेज किया था अर्पिता सरकार को, और अर्पिता सरकार का उस टाइम पे हमें एक पूरा कम्युनिकेशन पैटर्न मिला है उन सब हैंडल्स के साथ जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे. इसमें इनकी मतलब इनका प्रॉपरली कम्युनिकेशन हुआ है और अर्पिता सरकार वाज कंप्लीटली अवेयर ऑफ व्हाटएवर वाज शी वाज डूइंग. सर, ये यूनिफॉर्म जुगाड़ करना, जंतर मंतर में जाना, ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये इंस्ट्रक्शन उन्हीं से आ रहे थे. वो लोग मल्टीपल पोर्टल से इन लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें व्हाट्सएप भी था, इंस्टाग्राम तो था ही, इसमें टेलीग्राम था, इसके अंदर एलिमेंट एक्स है, सेशंस है. तो इन सब पोर्टल से ये इंस्ट्रक्शंस हमीम को आ रहे थे, और हमीम को ये भी बार बार बोला जा रहा था इन सब एक्टिविटीज़ के लिए कुछ और लड़कों को इंगेज करना, कुछ और लड़कों को इसमें इन्वॉल्व करना, इसमें नेटवर्क बनाना. तो इसका नेटवर्क बनाना ही इसका काम था, मतलब नेटवर्क भी बनाना था, प्लस इंटेलिजेंस गैदर करना, इंफॉर्मेशन देना, और आपको जैसे बोला यूनिफॉर्म लाना. तो ऐसे ये मतलब ये कोशिश कर रहे हैं. और हमको जो एग्जामिनेशन पैटर्न में अभी लगा, जो क्योंकि इसकी बहुत बातचीत होती थी कि वो बहुत सारे वो कोशिश कर रहे हैं और भी यंगस्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करने की. सर, क्या इसके पीछे पैसा का कोई लेन देन, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं. ब्रेन वॉश तो है एक, मतलब एक मेजर रेडिकलाइजेशन अटेम्प्ट तो इसमें है ही, क्योंकि पाकिस्तान के हैंडल्स इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली मतलब एक सेबोटाज, मेजर सेबोटाज एंगल भी है और पैसा. All right, so that's of course the statement that has been issued. My colleague Renik Datta is with us on the broadcast to share more on this. Renik, walk us through the details, please. एकदम देखिए, एसटीएफ की तरफ से ये जो दोनों को गिरफ्तार किया गया है, अर्पिता सरकार और हमीम मंडल, दोनों को इन्वेस्टिगेशन करते हुए एसटीएफ की तरफ से जो बयान दिया गया है उसी बेसिस पर एसटीएफ का कहना है कि ये पूरा गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था पाकिस्तान से. पाकिस्तान का हैंडलर की तरफ से अर्पिता सरकार के साथ कांटेक्ट किया जा रहा था, और इन लोगों का एक प्लान था कि पश्चिम बंगाल का एक मिनिस्टर, उनका बेटे को हनी ट्रैप में फंसाना और उसके बाद किडनैप करना. ये पहला प्लानिंग था, और उसके साथ साथ ही हमीम मंडल को जो असाइन किया गया था पाकिस्तान हैंडलर की तरफ से, वो था कि और भी नौजवान को गैदर करके एक प्लान तैयार करना, और उसके साथ साथ ही पुलिस का वोट भी जुगाड़ करके
दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान पुलिस का वर्दी पहनकर उस जगह जाकर कोई हादसा घटाना, ये पूरा प्लानिंग जो है ये प्लानिंग जो एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी अर्पिता सरकार और हमें मंडल दोनों को दिया गया था, ऐसा एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है। एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों का जो बातचीत करीब 4 साल से चल रहा था। दोनों के बीच में एंगेजमेंट भी हम दोनों करके रखे थे और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखे, इस तरीके का जो एटमोस्फेयर वो तैयार किया गया था। उसी बेसिस पर दोनों के बीच पर जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस जगह पर इस बारे में चर्चा होता था कि कौन से प्लानिंग उन लोग एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एसटीएफ का तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हैंडलर की तरफ से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता था अर्पिता सरकार की तरफ साथ। अर्पिता को पूरा ये घटना और किसके साथ वो कांटेक्ट कर रहे हैं पूरा डिटेल्स जो है वो अर्पिता को मालूम था और हम इनको भी ये पूरा विषय में मालूम था। All right, Renick, thank you for sharing